کارڈیالوجی میں میاں نواز شریف کا طبی معائنہ اس وقت جاری ہے۔ نواز شریف کی ای سی جی اور ایکو کارڈیوگرافی مکمل ہو چکی ہے۔ نواز شریف کے دل کے پٹھے معمول سے تھوڑے زیادہ سخت ہیں، جبکہ دل کا سائز بھی بڑھ چکا ہے۔ نواز شریف کا تھیلیم سکین بھی اس وقت جاری ہے۔ مزید بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف میاں نوید سے۔ نوید، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں؟ جی ویسے بالکل ای سی جی رپورٹ جو آئی ہے اس کی میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ ای سی جی رپورٹ کے مطابق جو ذرائع کا کہنا اسپتال ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ دل کا سائز بڑا ہوا اس کو نظر آیا ہے، اور اس کو ڈاکٹر جو ہے اچھی رپورٹ نہیں کہتے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور یہاں پر اہم بات ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے جو ان کا پچھلا ریکارڈ تھا، میڈیکل ریکارڈ، وہ ڈاکٹر کو کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ابتدائی ٹیسٹ بھی کرنے پڑے، اور ریکارڈ نہ ملنے کے باعث بھی ای سی جی اور ایکوگرافی کی گئی تھی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ بھی بتایا گیا کہ دل کے پٹھے ہیں وہ سخت ہے۔ اب ان کا تھیلیم سکین ٹیسٹ جاری ہے، اور وہ تقریباً 4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور پہلا پارٹ اس کا جاری ہے۔ اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک انجیکشن لگایا گیا تھا میاں نواز شریف کو، اسی دوران جو ہے ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوا، پھر تھوڑی سی تاخیر کی گئی، اس کے بعد دوبارہ پھر ٹیسٹ معمول کے مطابق شروع کیا گیا۔ اب ان کا جو ہے وہ تھیلیم سکین ٹیسٹ جاری ہے، جس میں ان کے پٹھوں کے حوالے سے مزید پتہ چلے گا، اور اس کے بعد جو ہوئی یہاں کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ میاں نواز شریف کے طبی معائنے کے بعد جو اپنی رائے دے سکے گا کہ ان کو علاج معالجے کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا۔ جی اچھا نوید، یہ بھی بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کے اہل خانہ میں سے کوئی پی آئی سی پہنچا ہے؟ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی وہاں پر کیا موجود ہیں؟ جی بالکل، میاں نواز شریف کی فیملی کے حوالے سے اگر بات کریں تو بالکل ان کی کوئی بھی فیملی ممبر ساتھ نہیں ہے۔ میڈیکل بورڈ جب ان کو اندر کمرے میں لگایا گیا اور جب وہ گاڑی سے اترے تو وہ اکیلے ہی تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کوئی جو ہے وہ ان کی فیملی کے ممبر نہیں تھے، اور اس وقت وہ اکیلے ہی جو ہے وہ ان کا یہاں پر علاج معالجہ اور طبی معائنہ جو ہے میڈیکل بورڈ جہاں تک وہ کر رہا ہے، اور تھیلیم سکین ٹیسٹ جاری ہے ان کا۔ جی میاں نوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے باہر ہمارے نمائندے محسن الوی موجود ہیں۔ محسن، آپ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد کا اندر طبی معائنہ جاری ہے، وہاں پر جو عام مریض ہیں ان کے لواحقین ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے سیکیورٹی ارینجمنٹس کے باعث؟ محسن، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لایا گیا ہے، جہاں پر اندر ان کا طبی معائنہ اس وقت جاری ہے، لیکن آج صبح سے یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر بھی اور باہر دونوں گیٹس کے اوپر بھی۔ جیسے ہی سابق وزیر اعظم کا قافلہ یہاں پر پہنچنے والا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے پولیس اہلکاروں کی جانب سے یہاں پر مریضوں اور ان کے لواحقین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ گیٹ کے ایک طرف جو ہے سارے مریضوں اور ان کے لواحقین جو اس وقت آ رہے تھے ان کو جمع رکھا گیا، جس کے بعد کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی ان کی سخت تلاشی کی جا رہی تھی ان گارڈز کی جانب سے جو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم کا قافلہ آنے سے کچھ دیر پہلے تمام مریضوں اور ان کے لواحقین کا داخلہ جو ہے مکمل طور پر انتظامیہ کی جانب سے پولیس اہلکاروں کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا، اور مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو یہ کہا گیا کہ آپ کسی اور گیٹ سے اندر چلے جائیں، اس مین گیٹ سے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیوز نے جب یہ معاملہ اٹھایا تو موقع کے اوپر موجود سیکیورٹی انچارج تھے پولیس اہلکاروں کے، انہوں نے فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا اور مین گیٹ کی انٹری جو ہے وہ شروع کی، اور مریضوں اور ان کے لواحقین کو لائن کے اندر لگنے کی ہدایات جاری کی گئیں، اور ایک لائن کے اندر سے جو روڈ کے اوپر لمبی لائن لگائی گئی، اس کے بعد اس لائن میں سے ان لوگوں کو سخت تلاشی کے بعد جو سامان ہے وہ لے کر اس کی تلاشی لی جاتی تھی، اور لوگوں کی جو تلاشی کرنے کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر اور اسکینر میں سے گزارنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد گیٹ کے اوپر، دونوں گیٹ اور اطراف میں اور اسپتال کے اندر بھی موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم کے اندر جانے کے کچھ دیر بعد جو ہے جب یہ معاملہ ہم نے اٹھایا، اس کے بعد مریضوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ممکنہ طور پر لگتا یہی کہ جیسے ہی سابق وزیر اعظم کو باہر لانے کا ٹائم ہوگا اور اس کے وقت جو ہے دوبارہ پھر سے گیٹ جو ہے بند کر دیے جائیں گے، اور مریضوں اور ان کے لواحقین کو بالکل اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے بہت شکریہ محسن الوی۔ مریضوں کو اسی طرح مشکلات کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے گا جب نواز شریف کو واپس لایا جائے گا۔ بات کریں گے ثانیہ ساہیوال کی، جس پر بنائی گئی جی آئی ٹی کی ڈیڈ لائن میں صرف 5 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ آج شام 5 بجے سے جی آئی ٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے شام 5 بجے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ثانیہ ساہیوال پر بنائی گئی جی آئی ٹی کی ڈیڈ لائن میں 5 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ آج شام 5 بجے 72
72 घंटे पूरे हो जाएंगे वाक़े को GIT को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताइएगा जो 5 बजे इजलास बुलाया गया है उसमें कौन कौन शिरकत करेगा जब रिपोर्ट पेश की जाएगी? जी, ये आज जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उन्होंने साहिवाल वाक़े के ऊपर जो इजलास बुलाया, इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका एजेंसी के जो आला हुकाम है वो शिरकत करेंगे। ये इजलास जो GIT की रिपोर्ट के बाद जो साहिवाल का जो सानिया हुआ था उसके हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है उन्होंने भी वज़ीर आला पंजाब जो शफाफ इंक्वायरी है वो कराई जाए और उसके बाद जो जिम्मेदार हैं उनके साथ जो कानून के मुताबिक है वो उनको सजा दी जाए। तो इस हवाले से ये जो इजलास हैं ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बुलाया गया है। इससे कबल भी उन्होंने मुख्तलिफ इजलास किए हैं कि इस वाक़े की जो शफाफ इंक्वायरी है उसको यकीनी बनाया जा सके और वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर ये मुस्तकिल जो है राब्ते में भी हैं वज़ीर आला पंजाब के साथ और उनकी हिदायत के ऊपर ये इजलास आज मुनक्कद हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में शाम को GIT रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। अभी जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, GIT रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत अगर GIT रिपोर्ट से मुतमईन न हुई तो वज़ीर आला जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से फैसला करेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। आज शाम मुतवक्किर है GIT की रिपोर्ट, जैसे कि कल CM साहब ने फरमाया था कि रिपोर्ट आने के बाद वो फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप शाम तक इंतज़ार करें। तो रिपोर्ट से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह किया जाएगा कतर, या क्या उसमें क्या रिपोर्ट के बाद प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, फ़िलहाल तो यही है कि रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है। तो ये डिपेंड करता है कि अब क्या वो फैसला करते हैं, ये उनकी स्वाबदीद पे है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे और जो मुतासरा ख़ानदान है उसको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल राजा साहब, आपको लगता है ये दहशतगर्दी का वाक़या है? नहीं, मेरा अभी कमेंट नहीं करते क्योंकि अभी GIT की रिपोर्ट आ रही है तो इसलिए। तो GIT की रिपोर्ट के बाद जुडिशल कमीशन का भी इम्कान है? देखें, वो उस सूरत में कि अगर CM साहब रिपोर्ट से मुतमिन नहीं होते तो ये फिर उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला। सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 24 जनवरी को तलब कर लिया है। दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैं अकेला जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकता, पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदालती तहकीकात की जाती हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि GIT की तफ्तीश से हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। माजी में सानिया मॉडल टाउन की GIT से भी कुछ सामने नहीं आया और अब इस पर दोबारा GIT बना दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इस्तफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है, जिस पर अदालत ने IG पंजाब को 24 जनवरी को तलब कर लिया। सानिया साहिवाल के एनी शाहिदीन लाहौर में खलील और ज़ीशान के घर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। एनी शाहिदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उकाड़ा से साहिवाल जा रहे थे। इस दौरान सादा और वर्दी में मलबूस एहलकारों ने कार को टक्कर मारी। जैसे ही वो सड़क के दरमियान लगे जंगले से टकरा कर रुकी, एहलकारों ने फायर खोल दिए। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार के अकबी शीशे काले भी नहीं थे, ना ही कार से कोई फायर किया गया। ये वाक़या हमारे बिल्कुल करीब हुआ और सामने हुआ। हम लोग शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा जुल्म हमारे इलाके में हुआ और ये 400 फुट के फासले पर थे जब ये गाड़ी आई है। उसने चारों तरफ इसको गाड़ी को रोका है, इस कोरे गाड़ी को, और फिर चारों तरफ से लोगों उतरे हैं, किसी ने ट्राउज़र पहने थे और इन लोगों ने फायरिंग शुरू की है। ऊपर से, साइड से, नीचे से, पीछे से गोलियां मारी गई हैं। उसके बाद अब हम गाड़ी के पीछे थे जहाँ जिससे आपको मूवी भेजी गई और एक बंदा उतरा है, उसने आगे जाके बात की है और गाड़ी वाले ने कुछ उसको कहा, इससे समझ तो नहीं आ रही, दूर था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें धड़ाधड़ फिर फायरिंग की है। और क्या ऐसे दहशतगर्द होते हैं? क्या दहशतगर्द बच्चों के साथ सफ़र करते हैं? क्या दहशतगर्द जो होते हैं उनके, अगर ये मासूम बच्चा निकल के ना बताता
کہ میرے मामा पापा के साथ ये हुआ, तो ये पहले अगवा कार बनाया, ये इन बच्चों को मार के सबको दहशतगर्द बना देते। गाड़ी के शीशे वाइट है, किसी ने वहाँ से कोई फायर नहीं हुआ, कोई साथ मोटरसाइकिल नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हम थोड़ी तकरीबन 100 फुट 200 फुट के फासले पे होंगे, लेकिन उधर ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस एकदम इनके ऊपर फायर किया है, कुछ भी नहीं था, इसको पीछे से हिट किया है, ये आगे जंगले से टकराई है, उसके बाद आगे हैं, वो सामान उनका निकाल के ले गए हैं और कुछ भी नहीं था, ये इनके साथ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा वहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है इस साने के हवाले से? जी वैसे बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त खलील के घर के बाहर, और यहाँ पर जो हैं उनके ऐनी शाहिदीन जो हैं साहिवाल साने के यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है मीडिया से भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने दोनों ख़ानदानों से ताज़ियत भी की है, और उनका ये कहना है कि उनके सामने ये वाक़या हुआ, 200 फीट के फासले पर वो मौजूद थे जब ये सान्या हुआ, और इस मौका पर उनका ये भी कहना है कि गाड़ी के शीशे कहा जा रहा है कि काले थे, लेकिन हमने खुद देखा है कि गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले नहीं थे। इस वक्त भी हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर नदीम मौजूद हैं जो कि ऐनी शाहिदीन हैं उस वाक़े के, उनसे ही बात करते हैं। नदीम भाई ये बताइएगा, आपके सामने ये वाक़या हुआ, कितने फासले पर ये मौजूद थे? फासले पे थे, हम अकाड़ा से साहिवाल जा रहे थे, और ये जो कारें रुकी इसके कोई ब्लैक ब्लू शीशे नहीं थे, ना इसके साथ कोई मोटरसाइकिल था, ना आगे से कोई रजिस्ट हुआ। ये गाड़ी रोकी इन्होंने, ये जाके लग गई गाड़ी, इन्होंने उतरते फायर मारना शुरू कर दिए, फिर फायर मारते रहे, और फिर बाद में इन्होंने जब बच्चे निकाले हैं उसके बाद फिर इन्होंने फायर मारे हैं। 3 बच्चे निकाल दिए हैं अंदर, बाकी जो लोग थे उनको सबको इन्होंने दोबारा फायर मारे हैं। क्या पुलिस मुकाबला ऐसे होता है? पुलिस मुकाबला जब होता है तो गाड़ी हमारे सामने ही रुकी है पुलिस की, तो पहले पोजीशन ही लेते हैं, इन्होंने तो उतरते ही इनको मारना शुरू कर दिया। जब लोगों ने देखा बीच में सीटीटी की जानिब से कहा गया कि वो गाड़ी से फायर हुए, मोटरसाइकिल था साथ उसमें, तो आपने कोई ऐसा वाक़या देखा? वहाँ 300 से ज़्यादा लोग थे, सबने बयान दिए हैं, और वहाँ हमारे सामने जब गाड़ी रुकी उसकी सवारियाँ सारी नीचे आ गई थी, किसी कोरे से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, कोई फायर, सिर्फ पुलिस वालों के फायर हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन का यही कहना है कि कोई गाड़ी से जो है फायर नहीं किया गया, कोई मोटरसाइकिल जो है वो साथ मौजूद नहीं था जिसका कहा जा रहा है, ये सरासर जो है वो जुल्म हुआ है मजलूम बच्चों के गाड़ी साथ। से कोई फायर नहीं किया गया। अरसलान जावेद, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साहिवाल सान्हे की तहकीकात में हुकूमत बुखलाहट का शिकार। पहले जेआईटी के सरबराह तब्दील होते रहे, कई घंटे गुजरने के बाद जेआईटी की मावनत के लिए मजीद 5 अफसर मुकर्रर कर दिए गए। एडिशनल आईजी की सरबराही में टीम ने कादराबाद में जाए वकुआ का जायजा लिया, बयान कलमबंद करने के लिए ऐनी शाहिदीन को भी तलब कर लिया। 50 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, हुकूमत जेआईटी के मामले पर भी कंफ्यूजन का शिकार। पहले डीआईजी जुल्फिकार हमीद को सरबराह मुकर्रर किया, फिर एडिशनल आईजी एजाज शाह का नाम सामने आ गया। इस पर भी इत्मीनान न हुआ तो जेआईटी की मुआवनत के लिए 5 और ऑफिसर मुकर्रर कर दिए, जिनमें इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच सीपी लाहौर मंजूर अहमद शामिल हैं। फायरिंग में मुलविस एहलकारों की शनाख्त भी हो गई। सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन, एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्ला और हसनैन अकबर ऑपरेशन में शामिल थे। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम ने कादराबाद में जाए वक़ुआ का दौरा किया। ऐनी शाहिदीन को बयान देने के लिए तलब किया गया, कई घंटे इंतजार कराया, फिर थाने तलब कर लिया। ऐनी शाहिदीन ने जेआईटी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया, एहतजाजन बयान रिकॉर्ड कराए बगैर ही वापस चले गए। उधर बलूचिस्तान के इलाके हब में होने वाले हौलनाक हादसे का एक और जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गया, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बेला क्रॉस के मकाम पर मुसाफिर बस तेल से भरे ट्रक से टकरा गई, आग भड़कने से दर्जनों मुसाफिर जिंदा जल गए। मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगने से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बलूचिस्तान के इलाके हब में अंधुनाक हादसा, मुसाफिर कोच टायर फटने से तेल के ट्रक से जा टकराई, आग भड़कने से दर्जनों मुसाफिर झुलसकर जिंदा जल गए। हादसे में जख्मी होने वालों को बेला और कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद की लाशें सुराब गोट एदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गयी। मुसाफिर कोच कराची से पंगजोर जा रही थी, बेला क्रॉस के मौका पर हादसे का शिकार हुई।
बलूचिस्तान की तहसील बेला में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों की मैयतें कराची के सर्द खाने में रखी गई हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें लेने के लिए ईदी सर्द खाने पर मौजूद हैं। ईदी सर्द खाने के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बलूचिस्तान के वजीर सोशल वेलफेयर मीर असद बलोच बोले कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जाँ बहक होने वालों के अहले खाना 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। DNA पर यकीन नहीं रखता, मरने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा पंजगोर में अदा की जाए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े में जो जाँ बहक अफराद थे 27 अफराद, उनकी जो है वो लाशें इस वक्त जो है ईदी सरखाना में सोराब गोड में मौजूद है और गुस्लो कफन के बाद जो है वो तैयार कर ली गई हैं उनकी मैयतें और अब से कुछ देर के बाद उन्हें यहाँ से बेला रवाना किया जाएगा, जहाँ पर कागजी कार्रवाई के बाद जो है उन्हें पंजगुर उनके आबाई इलाके जहाँ के रहने वाले थे वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इज्तिमाई तौर पर इनकी तदफीन कर दी जाएगी। इस वक्त जो है यहाँ पर सूबाई वजीर जो है बलूचिस्तान के मीर असद बलोच, उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि वो DNA पे यकीन नहीं रखते, ये एक हादसा था जो कि जो है वो उनका ये भी दावा था कि ये गाड़ी जो है कराची से चूँकि बलूचिस्तान की तरफ जा रही थी, लिहाजा ये इम्कान कतन इसमें नहीं है कि इसमें डीजल जो है वो स्मगल किया जा रहा था। जबकि जो है यहाँ पर जो लवाहिकीन है, लवाहिकीन ने इस अफसोस का इजहार किया है। लवाहिकीन का कहना है कि जो आने वाली जो गाड़ी जो टकराई है इस बस के साथ, उसमें जो है वो डीजल सप्लाई किया जा रहा था और ये जो धंधा है ईरानी डीजल की स्मगलिंग का और पेट्रोल की स्मगलिंग का, ये जोरों शोर से जारी है। ताहम हुकूमत जो है उस पर काबू पाने के बजाय जो है उन्होंने अब जो है वो DNA से भी इनकार कर दिया, DNA कराने से भी, और तमाम मैयतें बगैर DNA के जो है वो बुरसा के हवाले की जाएंगी। इस वक्त यहाँ पर एक जो है वो शोक का आलम है। तमाम तर लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का कोई अजीज तमाम जो है लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाक फौज ने नथिया गली में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। ISPR का कहना है कि तौहीदाबाद में खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद जवानों ने बर्फबारी में फंसे तमाम मुसाफिरों को मरी और कालाबाग में महफूज मकामात पर पहुंचाया है। दूसरी जानिब लाहौर कोहिस्तान में पटन के मकाम पर फंसे गैर मुल्की सयाहों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर एबटाबाद में केहाल के करीब पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पाक फौज ने नथिया गली में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया। फंसे हुए इधर तौहीदाबाद के ऊपर नथिया गली जाते हुए, और ये 3-3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, इसमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। ISPR के मुताबिक तौहीदाबाद में खराब मौसम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन अलग सुबह 3:15 बजे शुरू किया गया। बर्फबारी में फंसे तमाम सयाहों को मरी और कालाबाग डैम में महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। उधर लोअर कोहिस्तान में पटन के मुकाम पर फंसे गैर मुल्की सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। गैर मुल्की बाशिंदों ने सख्त मौसम में इमदादी कार्रवाइयों को सराहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उधर एबटाबाद में केहाल के करीब पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लोअर देर में भी शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। खैबर पख्तूनख्वा की जिला बडग्राम में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से जारी है। बलाई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला भर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मुतादिद इलाकों में 2 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि बडग्राम की तहसील अलाई में मुसलसल बर्फबारी की वजह से 5 यूनियन काउंसिल्स की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। मकामी सतह पर अशियाई खुरानोश की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। मुतादिद बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। शारकोल के मकाम पर चारा रेशम पर शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद सयाह फंस चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पुलिस अहलकारों को रवाना कर दिया गया है। बडग्राम में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से जारी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अताउल्लाह नसीम से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कोई इक़दामात किए जा रहे हैं शहरियों को रिलीफ देने के लिए? जी बिल्कुल, जिला बडग्राम में गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जो बडग्राम की दूसरी तहसील है तहसील अलाई, उसमें तकरीबन 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और मुसलसल बर्फबारी की वजह से मुकामी रास्ता सड़कें और रास्ते जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो शारकुल का मुकाम है, यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी के बायस शहर रेशम जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ जो बडग्राम से लेकर ताकोट तक जो शहर रेशम है, उस पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग के बायस जो है सड़क बंद हो गई है और मुसाफिर जो है वो बीच राह में फंस गए हैं।
ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ہے مختلف ٹیمیں مختلف جگہوں پہ وہ شارع ریشم کو بحال کرنے میں مصروف ہیں. شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. اور اب چند مزید خبریں سوشل اور کرائم راؤنڈ اپ میں. مظفر گڑھ میں خدائی بنگلہ کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم ہوا. مسافر وین پر سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو تشویشناک حالت میں DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بہاری میں پکی بورڈتا ٹابا روڈ پر ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا. لیا کے علاقے چوک اعظم میں نوجوان کی خودکشی کی کوشش. 20 سالہ عمر دراز نے گھریلو ناچاکی پر خود کو گولی مار لی جسے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں لیاری کے علاقے بغدادی میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کر لیے گئے. ملزمات سے اسلحہ، موبائل فون اور مسروقہ سامان برآمد کیا گیا. کراچی سولجر بازار میں ٹریفک پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. کانسٹیبل احتشام کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاک پتن میں پولیس وردیاں پہن کر ڈاکوؤں کا محنت کش کے گھر پر دھاوا. اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر 2.5 لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی لے اڑے. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اور OLX. بیچ دیں. نواز شریف کے دل کا سائز بڑا ہوا ہے. ECG رپورٹ میں انکشاف. PIC میں نواز شریف کا طبی معائنہ جاری. لیا کے علاقے چوک اعظم میں نوجوان کی خودکشی کی کوشش. 20 سالہ عمر دراز نے گھریلو ناچاکی پر خود کو گولی مار لی جسے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں لیاری کے علاقے بغدادی میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کر لیے گئے. ملزمات سے اسلحہ، موبائل فون اور مسروقہ سامان برآمد کیا گیا. کراچی سولجر بازار میں ٹریفک پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. کانسٹیبل احتشام کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاک پتن میں پولیس وردیاں پہن کر ڈاکوؤں کا محنت کش کے گھر پر دھاوا. اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر 2.5 لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی لے اڑے. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اور OLX. بیچ دیں. نواز شریف کے دل کا سائز بڑا ہوا ہے. ECG رپورٹ میں انکشاف. PIC میں نواز شریف کا طبی معائنہ جاری. ثانیہ ساہیوال کے شاہدین کی جاں بحق افراد کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. میڈیا کو صورتحال کے بارے میں بھی بتایا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے پیشین گوئی کی ہے. بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے. میدانی علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا. بالا علاقے برف کے غلاف میں لپٹے رہے. بارش سے منظر دھل گئے، چہرے کھل اٹھے. لاہور اور فیصل آباد سمیت پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں ابر کرم کھل کر برسا. ہماری نمائندہ عائشہ شعیب. عائشہ بتائیے گا اسلام آباد کے حسین موسم کا احوال. جی بالکل، اسلام آباد کے موسم کی بات کرتے چلے تو 2 روز سے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اگر محکمہ موسمیات کی بات کرتے چلیں تو محکمہ موسمیات نے بھی بدھ تک یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے. تاحال 2 دن سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تو شدید جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر قبل ہی بارش جو ہے وہ کچھ دیر تو تھمی تھی لیکن ابھی پھر سے بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے
और अगर अभी दर्जा हरारत की बात करते चले तो इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बाद अगर कुछ देर बारिश थमती भी है तो ठंडी हवाएं चलती हैं। जो इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत है वो खुसूसन बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ दीगर शहरों की अगर बात करते चले तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के साथ हज़ार और मलकन डिवीजन में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद बारिश का इम्कान है। नुमाइंदा न्यूज़ नायाब रिजवान मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, पेशावर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त आसमान पर मुकम्मल तौर पर बादल छाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, जिसके बायस यहाँ पर सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है, जबकि पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई थी। सबसे ज़्यादा बर्फबारी मालम जबा और कालाम में हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। जी, उधर मरी में अब तक 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। रात गए के लिहाज से पाक आर्मी की मदद से 37 सयाहों को रेस्क्यू करके मरी पहुंचा दिया गया। होटल एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी राजा यासिर ने रजाकाराना तौर पर पूरा होटल मुतासरा सयाहों के लिए खाली कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि मरी को आने वाले रास्ते कई जगहों पर बर्फबारी से बंद हो चुके हैं, सयाह मरी ना आए। नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खिच्ची के साथ मौजूद हैं। ताज, बताइएगा क्या कहना है इम्तियाज़ साहब का? जी, इस वक्त हम मलका कौसार मरी का जो डखाना चौक है वहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मरी इम्तियाज़ अहमद खान पीछे खड़े हैं, जिन्होंने आज रात भर जो है वो रेस्क्यू किया है। हम इनसे बात करते हैं कि ये हमें ऑपरेशन की जो है वो मज़ीद तफसीलात जो है वो बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रात का जो सीन हुआ है उसके बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि 38 के लगभग लोग थे जो गलियात में महसूर हुए, तो सिविल इंतज़ामिया ने और साथ मिलिट्री के कोऑपरेशन से हमने उन 38 के 38 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और अभी यहाँ पे मरी के जो है होटल जो है दी मॉल में वहाँ पे उनको हम ठहरा रहे हैं। जी, और जहाँ तक मरी की इंतज़ामात का ताल्लुक़ है तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो इस साल इस सीज़न में मशीनरी दी है वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा है, मैं समझता हूँ कि ये असिस्टेंट कमिश्नर मरी की काविशें हैं। वो लोग भी इस वक्त जो है उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उस तूफ़ानी बर्फ़ में से मरी की इंतज़ामिया ने और मिलिट्री ने मिल के जो है वो इनको रेस्क्यू किया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला सिंधोती के इलाके तराड़खल में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बर्फबारी के साथ ही बिजली की आगमचोली का सिलसिला भी जारी है। नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदरोती तराड़खल में और रात गए से यहाँ पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज़ाद कश्मीर भर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फ़बारी की वजह से मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है। तराड़खल में और नहरिया शरीफ और बंजोसा में भी रात गए से बारिश जारी है, जबकि ज़िला सदरोती के मकाम पलंदरी हलियान में बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो जो मेरे साथ पीछे जो दरख्त हैं तो ये मुकम्मल सफ़ेद हो चुके हैं। इलाका जो है वो मुकम्मल सफ़ेद हो चुका है और ये इलाका जन्नत नज़ीर का जो है वो अक्स पेश कर रहा है। उधर अमरीका की आधी रियासतों में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। 10 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और पोलैंड को भी बर्फीले तूफान का सामना है। अमरीका और यूरोप में शदीद बर्फबारी से निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। वाशिंगटन, मिनीसोटा, टेनेसी, कैलिफोर्निया और मेन में 24 घंटों के दौरान 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। मुतासिरा रियासतों में स्कूल और दफातर बंद, हजारों परवाजें ताखीर का शिकार। 2 तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इमरान खान के एजाज़ में इशाइये का भी इत्माम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कतरी अमीर समेत अहम शख्सियात से मिलेंगे और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कतरी अमीर समेत अहम शख्सियात से मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने इमरान खान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा दोहा पहुंचे तो कतरी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा ने हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात ने मौजूदा कशीदगी ख़त्म करने और ताल्लुकात असरनो बेहतर बनाने के मकसद में कामयाबी हुई है। सीनियर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल आगे बढ़ने का अक्कास है। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान की मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। मेरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी है उसको ख़त्म किया जाए और हम ताल्लुकात को रीसेट करें। तो कल की जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात की अक्कासी है कि वो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। वो जो उंगलियां उठाते थे आज वो तारीफ़ के कलमात कह रही हैं। आज वो कह रही हैं कि उनकी ख्वाहिश है और वो सदर ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ नशिस्त करें। उन्होंने इत्तफाक किया कि इमरान खान जो कहते थे और सारी दुनिया उस वक़्त उस पर तवज्जो नहीं देती थी कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, आज हम सब इत्तफाक कर रहे हैं कि उनका अंदाज़ा दुरुस्त था और आज हम पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक किरदार को सराह रहे हैं और समझते हैं कि पीस और रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात बहाल हो गए। कतर में अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान वफ़द की मुलाकात हुई है। तर्जुमान अफ़गान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का तरीक़ेकार और शेड्यूल पर बातचीत हुई है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। उधर मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। काबिज भारतीय फौज की शेलिंग से कई कश्मीरी जख्मी हो गए। शहादतों के खिलाफ वादी भर में कश्मीरियों ने एहतजाज किया। काबिज भारतीय फौज की शेलिंग से मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी हो गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ब्रेक्सिट प्लान भी ऐवान में पेश कर दिया। ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया में रहने के ख्वाहिशमंद यूरोपियंस पर 65 पाउंड फीस की शर्त खत्म कर दी गई। नए प्लान के मुताबिक यूरोपीय शहरी तालीम और सेहत की सहूलियात के हकदार होंगे। वज़ीर आज़म ने आयरिश बैकस्टॉप पर डीओपी और दीगर जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। थेरेसा मे कहती हैं कि रेफरेंडम के नतीजे को अमली जामा पहनाना हमारी जिम्मेदारी है। ब्रेक्जिट के हवाले से नो डील का ऑप्शन शामिल नहीं। लेबर पार्टी के सरबरा ने ब्रेक्जिट प्लान बी को प्लान ए की कॉपी करार दे दिया। बरतानवी नुमाइंदगान में 29 जनवरी को ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा वोटिंग होगी। मशहूर अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए डिजिटल पाम ट्री